Recording is on the way. We are good to start, right? Yes, from my Yeah, end. Okay, then we start from this slide basically. The magnitude and the speed of collapse in activity that followed the COVID-19 was unlike anything that we have ever experienced in our lifetimes, truly. So we saw the entire world shutting down to try stop the virus from spreading. But even though the world came to a standstill, it was not enough to stop the world of work because work continued even in those lockdowns. And we saw most of the organizations around the world implementing digital solutions and adapting to remote work for the safeguard of their employees at a pace that even the most extreme business continuity plans could not have had envisioned. And for job functions where physical presence is a necessity, in such cases, we saw that the workplace and the work processes they were modified to adapt to the new employee safety requirements that were the norms. Uh, so it has been almost like 2 years now since the COVID-19 pandemic, and this time 2 years or 3 years, 2020, 3 years since the pandemic has hit us, and during this time, the way we all have been working has become like the new normal that we call hybrid work. And this pandemic basically altered the business world in an history phase, the effects of which has been felt over all over the world. For many job functions and sectors, pandemic actually proved that work does not need to be confined within the perimeters of the physical workspaces. And as a result, what we saw was a shift in the work paradigm. Sorry, Yep. Joy, I think there is some issue from your mic and or network. It's your voice is fluctuating for me. It's For yep. all, Same for me. Yeah, yeah. and from where I was last clear properly? just before this slide properly for me. From here? Yes. So during this time, it started increasing more. So that's the case. Okay. Uh, so now that I'm speaking, is it okay? Like it's normal? Still a little bit for me. I think the issue is maybe with the mic, not with the internet. Okay, now, like, is it too high or is it like too low? Like it's fluctuating. Sometimes it's high, sometimes it's low. Okay. Hello, testing, testing. One, two, three. Now, Yeah, yeah, better. Better now. Yeah. okay. So I was saying like it's been 3 years now that the pandemic has hit us, and during this time, the way we have been working, it kind of became the new normal. And I'm talking about this remote work, hybrid work scenario. The COVID altered the business world in unprecedented way that we know, the effects of which was felt over all over the world. And the pandemic actually proved that for many job functions and sectors,
Work does not needs to be confined within the physical perimeters of the workspaces. As a result, we saw a shift in the work paradigm within the global workforce, the spectrum of which ranges from, so many have personal reasons to do remote work, many have professional reasons of choosing to do hybrid work, and something that can be felt across most of the industries, right? And it is because of this shift in the attitude towards the workplace that has happened is what is making it a challenge for the organizations in calling their employees back to the office. But I will not get into this topic of work from home versus return back to office. But what's important and the purpose of our discussion is that this work paradigm shift which has happened, it was not entirely caused or triggered by the pandemic, or it's not something that happened all of a sudden, like 2020 came and all of a sudden like we all shifted to remote working. It's nothing like that. The evolution of the workplace that we get to see today, it was already an ongoing process that we have been witnessing through the last few years of the last decade. So if I take the last decade from 2010 to 2020, we were already seeing this change happening from maybe 2017, I can say 2017, 2018, 2019, because many of the organizations were already started with their digital transformation programs, right? And it is evident from the fact that, as I said, like many organizations around the world was already on their way moving towards this new reality of flexible workplace. So if there's a change, there must be a cause, right? So why there was a change? Why the workplace was changing? Like why do we see all these digital transformations happening? This is a question to all. Testing, testing, one, two, three. Hello. Yes, Joy, we can hear Yeah, you. yeah. Yes, Joy. I said this was a question to all. I have no idea. So tell me what the question was. Like, why was there a change for So if we remote see work? this digital transformation works that has been going on to Yeah. change the workplace, why was that change even happening? So, Joy, it provides more flexibility to work. For an example, it also saves a lot of amount for the organization. Let's say I'm working from Kolkata and I'm a cream resource which I need to work. Something in for Capgemini. I'm developing something where Capgemini is very interested. Now, Capgemini do not have, let's say, Capgemini do not have any kind of offices in Kolkata, and it's not possible for me to move to another country or to another city at this point of time. So I can use my own device by the technology called bring your own device in Intune, and I can use that bring your own device No, but this policy. is like Yeah, the benefit that you're telling. yeah, I can understand, like there are benefits to it, yeah. but then why was this benefit not seen back in say 2000 to 2010 or even back like 1990s, 1980s? Why was this change suddenly happening from 2015 onwards? Because as per my understanding, Intune is a kind of a cloud solution, and this is a future. Look, leave Intune But out of question now. Intune is okay. just one of the technologies. Leave it aside because if there was only Intune, uh, it wouldn't have been possible. There are other side by side technologies that has to come hand in hand to make the digital workplace happen.
So the answer, like the simple answer is to the change was happening because to match up with the expectation of the current generation workforce. We have to understand that the workforce is not constant. With time, the people who are working within the workforce, they change. So for example, uh, people retire, people join, right? So within the workforce, generation change happens. Now people who are older than us, they are not so technically good or technically capable, right? They maybe they are trained to use computers and things like that, and they are happy they came to the office, do their work and done. But we are someone like we are the digital generation, and even like the generation after us, they are more technically capable than us. So this generation change that is happening within the workforce is making the workplace change. So if the workplace remains as constant as what is used to be in the 90s for us, then it doesn't make any sense for us because technology is not there in the 90s. Technology has evolved, so must the workplace, right? So that is the simple answer, like the generation change that is happening and to match up with the expectation of the current generation. So we are seeing a current change like this digital transformation and everything. Maybe 10 years, 20 years down the line, we will see some other changes that is happening to the workplace. Uh, this artificial intelligence and all such things will maybe they will take place, or maybe some other better technology will come up uh, that meets the expectation of uh, the current generation of workforce that will be there in that time phase. So that is how we will be, say 20 years down the line, we will be then the old generation. We won't be that much in confidence with the technology that will be current at that time. This has happened, right? People who were comfortable with older technologies, the technologies which are not relevant nowadays, they are not part of the workplace or workforce anymore. Unless they have reskilled or upskilled themselves to get trained with the new technologies, right? These things have happened, and this is a continuous process that is happening throughout, and that will happen throughout. It's not something that will ever stop. So, yep. So the cause of change is the generation, and the COVID-19 just merely acted as a catalyst, which aided the change process exponentially. But as I said, the cause can be traced to three primary factors. First is the aging workforce, who do not identify themselves with the current trend of technologies, and they are, as a result, falling back because the pace of work at the workplace today, uh, the rate at which we do work has increased. So the older generation cannot cope up and they're falling behind. Uh, and all of this is possible because of the relentless advancement of technology that has disrupted human life and thus also the workplace. Now, the three factors that I just mentioned, like the aging workforce, the pace of work, and the technological evolution, how they interlace with each other is something that I will leave up to you to decipher. I will not say that, but what all these factors led to was one common expectation, and that was flexibility and mobility. So, for the digital generation that we are in, we as employees want to be empowered with mobility and flexibility.
We don't want to be tied down to a single place or for 9 hours a day, then travel or commute for 2 hours more and then come back and have like 5 to 6 hours of sleep and then we get ready and go back to office again. We are not that generation anymore. And as a result of this, we saw work which was once rigidly perimeter restricted uh, to become more accessible and flexible, powered by the cloud. But this poses, give me a minute. So, so this posed a new problem for the workplace IT. Now, the traditional workplace IT infrastructure that was in place, it was neither designed nor it was technologically capable to handle the remote flexible mobile work, and as such fell short in its capability to handle the new changing work requirements. So the need for a change emerged, and as I said, like if the workforce was changing, the world of work was changing, so was the technologies alongside with it to keep up with the changing needs. And as a result, for most of the traditional workplace technologies that we can think of, we saw the emergence of the cloud powered spin offs to power the modern workplace of today. So if the cloud power technologies for the traditional ones didn't came or were not invented or say not created, then modern workplace of today would not have been possible, because only a change in generation and a change in need does not makes it possible. The technology also has to come up to that point where it can meet the requirements, right? So it was only possible because all the three of the factors that I said, they were going hand in hand. So if technological evolution didn't happen but the generation change happened, obviously there wouldn't have been much difference in the workplace that we get to see in today, because we wouldn't rely much on technology then, because we were still old school. But while we were growing up, technology also grew up, and as such we have that grasp. And this resulted that change in the workplace strategy was also a must. So the move from traditional on-premise restricted classic workplace to a cloud-powered digital workplace, it became more important than ever. And the organizations obviously responded to these changing work requirements by rethinking their workplace strategies. So we saw workplaces across the world started preparing for this move, like from the traditional to the modern setup, to be able to handle the current work requirements. And this was already being done back in the 2017, 2018, and 2019 before the pandemic hit us. But at that point of time, the pace of transformation was rather slow, because back then the move to a modern management setup was more like a nice to have addition in parallel to the current traditional setup that they had. But then COVID happened, and what was like termed as a nice to have became a must have for the business continuity, and we saw workplaces going digital and modern at an exponential rate. So this is basically a long story short, all behind the scene context and information that you need to know regarding the move from a traditional workplace to modern workplace, why the move happened. Now, everyone clear on this? Yes, sure. Yeah, Any questions? nothing for me. Okay, so I will move forward, Yeah, Joy. but Yeah, Joy. mhm, yeah. Are we going to get this presentation for a review that?
um, after this call or something? The presentation in this sense, yes, I will share. Okay. But then you have to, with each slide, you have to relate what I said, or you have to make a story with each slide because uh, those the things that I'm saying, as I said, like it's not written in the presentation. Mhm. So I'm just seeing the slide and I'm making up a story around it. That is how basically I do a presentation. Mhm. So next, I will skip a few slides because those are basically the ones that I use to introduce myself, but in this case, it's not necessary. So I will quickly skip. And next is comes the question. So this will be a question to all of you, everyone. I will ask to try at least to define, and that is what is modern workplace? How can we define it? Now, I have told you the backstory of all this move, why we move from traditional to modern workplace. Now, this is the time when I'm asking what is modern workplace. So, anyone? No, not anyone. Everyone will need to give me an answer. So, Joy, modern workplace, which I could say define is a based on today's need that makes your technological and physical requirements at a company level or organization level, so that you can evolve at a place and provide the customer this with the same pace its needs. तुम मेरे इसके पहले भी ट्रेनिंग में कभी थे क्या? हाँ था। अच्छा, ठीक है. शिवम, Yeah, so I'd say modern workplace is like you can now work from anywhere, from any device at any time. तुम भी थे क्या मेरे पिछले कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन में? हाँ. सब कॉपी पेस्ट मारते हैं. नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, आप ही ने बताया अभी ये सब. ठीक है, मैंने बताया, कुछ तो खुद का बता सकते थे ऐड करके जो मैं सुनूं पहली बार. ठीक है, अभिजीत, योर टर्न. Yeah, also the same thing. We can work from anywhere. We can work from, in hybrid mode also. We can connect any devices to the corporate network and start working. So it also boosts the productivity from an organization point of view. ओके, सौरभ, तुमको कुछ बोलना है? Security measures is important. So security plus flexibility of work. ठीक है, ठीक है. तो टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो मतलब चारों ने सही आंसर दिए. सो मॉडर्न वर्कप्लेस can be defined as the IT operational setup that is driven by the power, flexibility, and agility of cloud and is professionally designed to meet the physical and technological needs of the time for both the business and the employees. ये रजित ने बोला था. Uh, or we can also say that it's a decentralized people oriented environment. Now why we are saying decentralized? Because we can work from anywhere, anytime, any place, so it's not a centralized location or managed place. And people oriented because the workplace is now more uh, uh, more oriented towards the people than the actual work.
because if you focus on the people, the work will automatically get done. But if you only focus on the work but do not focus on the people, then work will stay pending and pending. So it's a decentralized people oriented environment that efficiently introduce technology and digital resources so that the employees can have secure access to relevant information. Security सौरभ ने बोला, from anytime anywhere any device शिवम ने बोला, and बाकी सब कुछ को मिला के अभिजीत ने बोला था. तो that is what is modern workplace for us. So if an organization is able to deliver a seamless user experience to the employee when they try to access a corporate data from any device irrespective of any time, any place, then that organization is delivering a modern workplace. And in this here, tell me what. So we see three things on the screen right now. Say one is anytime, one is anywhere, and one is any device. Of these three things, what is the one that we are interested in? Any Any device device. or and anywhere. Uh, I will take any device. Any device. So we are Yeah, interested in any device. Now, why? Why we Because will focus on any device? since we are moving into the modern way of management, and we don't want to rely on a certain parameter where we stick to one laptop and check our mails, access our workplace. Rather, we want to go to any device in terms of phones or any laptops or any other devices that you can access those work related stuffs from anywhere. So a device becomes a important part of that. Device becomes an important part of that. ये तो ठीक है कि मैं एक ही लैपटॉप से काम नहीं करूंगा, मैं मोबाइल से भी करूंगा, मैं आईपैड से भी करूंगा, मैक से भी करूंगा, ठीक है. बट पहले अगर मेरे पास कोई डिवाइस है नहीं, क्या मैं काम कर पाऊंगा? No. उसके लिए डिवाइस इंपॉर्टेंट है. सो आई फर्स्ट नीड अ डिवाइस टू गेट स्टार्टेड इन वर्किंग. एक्स्ट्रा डिवाइस तो बाद में आएगा. सो एज आई सेड, a typical workplace, it includes a user, right? I am a user, I am an employee, I am a user, and there is some business data stored in the cloud or data center, wherever that may be. And I, as an employee, will need access to that data to do my work. That is the whole scenario of any organization, right? Yes. Now, abhi as a user, मैं तो डायरेक्टली क्लाउड या डेटा सेंटर को कनेक्ट नहीं कर सकता. आई नीड एन इंटरफेस which will help me to get connect to that data, and that interface is the device. But अभी मेरे पास डिवाइस है, आई एम अ यूजर, मेरे पास अभी डिवाइस भी है. स्टिल कैन आई एक्सेस द डेटा? मुझे और क्या चाहिए? access. Access to network. Yeah. अच्छा समझ लो, मैं तुमको सिर्फ एक विंडोज लैपटॉप, सिर्फ विंडोज डाल के तुमको दे दिया. तुम्हारे क्रेडेंशियल तो तुम्हारे पास है, यूजर इज ऑलरेडी द क्रेडेंशियल. तुम्हारे पास वो क्रेडेंशियल है, उस क्रेडेंशियल पे डेटा का एक्सेस भी है, बट मैंने तुमको सिर्फ एक लैपटॉप दिया जिसमें सिर्फ विंडोज डाला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है. क्या तुम उस लैपटॉप
को यूज करके डेटा को एक्सेस कर पाओगे? नहीं। नहीं, मतलब एप्स वगैरह भी तो चाहिए। हाँ, तो द नेक्स्ट इंटरफेस दैट वी नीड इज एन ऐप। राइट। नाउ अभी मेरे पास डिवाइस है, मेरे पास एप्लीकेशन भी है, मेरे पास यूजर है जिसका क्रेडेंशियल पे एक्सेस भी है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड in order to get access to that data? VPN सोचो connection सोचो। maybe, a secure connection between the data and the app which is getting the data, we can say, लाइक information. इंटरनेट। हम्म, ठीक है, मैं दोनों का ही आंसर लूंगा। वीपीएन भी हो सकता है, लेकिन वीपीएन से पहले इंटरनेट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिवाइस को तो पहले नेटवर्क पे कनेक्ट होना चाहिए। सो वी नीड अ नेटवर्क। तो कुल मिला के इफ वी सी, ट्रेडिशनल वर्कप्लेस हो कि मॉडर्न वर्कप्लेस हो, बात यही है। यू एग्री विथ मी और नॉट? हम्म। तो पुराना वाला वर्कप्लेस भी हो कि नया वाला वर्कप्लेस भी हो, बात यही है। हमको एक यूजर चाहिए, डिवाइस चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, नेटवर्क चाहिए और डेटा चाहिए। यही मेरा वर्कप्लेस है। इसी के अराउंड सेंटर होके जो आईटी बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसी को लेके बना है। इससे अलग और कुछ नहीं है। बट इसमें अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जो पहले भी फोकस किया जाता था, इज द डिवाइस। बिकॉज अगर हम देखें ये पूरा सिनेरियो, अगर हम देखें, मेरा माउस कर्सर आ रहा है क्या? यस। तो अगर मैं इधर से एक लाइन क्रॉस करूं, तो मेरा जर्नी एज अ यूजर इस डेटा के टूवर्ड्स जो स्टार्ट हो रहा है, उसका बिगिनिंग पॉइंट कौन है? ये डिवाइस है। तो मैं ऐप को तो सिक्योरिटी दूंगा, नेटवर्क को भी मैं सिक्योरिटी दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको चाहिए? डिवाइस। डिवाइस को चाहिए, क्योंकि डिवाइस। इसी से पूरा कहानी स्टार्ट हो रहा है। And that is why the core of a workplace strategy is always about efficient and effective management of the endpoint to ensure the security and safety of the corporate data that is being accessed and worked upon. तो ट्रेडिशनल वर्कप्लेस हो कि मॉडर्न वर्कप्लेस हो, डिवाइस मैनेजमेंट ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वीपीएन, वो सब तो बाद में आता ही है, लेकिन all those technologies are revolving around this device. अगर ये डिवाइस नहीं होता तो वो कोई भी टेक्नोलॉजी साथ में नहीं होता। एंड क्योंकि हम लोग मॉडर्न वर्कप्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक से, मतलब यही डिवाइस मैनेजमेंट के टॉपिक से, वी गेट इनटू द टॉपिक ऑफ मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल वर्कप्लेस में भी डिवाइस मैनेजमेंट होता था, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल डिवाइस मैनेजमेंट। मॉडर्न वर्कप्लेस में भी डिवाइस मैनेज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट। तो अभी तुम सबके लिए फिर से क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज मॉडर्न वर्कप्लेस मैंने सबको पूछा, तो सिमिलरली नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर मी, व्हाट इज मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट। एक एक करके सब लाइन में खड़े होकर आंसर देना स्टार्ट करो। Like you can manage the devices, like obviously the admin, but from anywhere. ओके, अच्छा मैं नाम पूछ के जिज्ञेस पूछूं? ठीक है, रजित अब या आप?
Joy, modern device management is basically a management of devices in a unified way from any from anywhere actually, and without compromising on the security part, which you already highlighted earlier. ओके, अभिजीत कुछ ऐड करोगे? मेरा वॉइस आ रहा है ना? No, Joy. Same thing. By maintaining the security, unified administration, you can say. ओके, सो मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट को भी थोड़ा डिफाइन करते हैं, क्योंकि ऐसे आंसर दोगे तो इंटरव्यू में पास तो होगे नहीं। गुस्सा मत होना, ठीक है, लेकिन अच्छे से आंसर देना होता है। सो मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट, in simple terms we can define it as the ability of IT to manage all the end user devices that are being used across the enterprise landscape from the cloud. It is the core of any digital workplace program and also an integral part of an organization's zero trust stance. So on one hand, it enables IT to manage endpoints of different OS platforms in a secure, consistent, and unified way that is simple and easy to administer, and something that is just not possible with a traditional setup. On the other hand, it empowers the users to be productive from any device anywhere. So simple terms में, this should be a polished answer that you give when maybe say in an interview someone asks you define modern device management. ठीक है, तो थोड़ा बहुत like ability to manage from cloud एक ने बोला, एक ने बोला secured unified way, दूसरे ने बोला to user ताकि कहीं से anywhere anytime any device से काम करे। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे आंसर देने से नहीं चलेगा। ये जो सारे पॉइंट्स है सबको एक साथ एकत्रित करके उसको बोलना पड़ता है। सो नाउ अभी वी हैव डिफाइंड मॉडर्न वर्कप्लेस, वी हैव आल्सो डिफाइंड मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग को मॉडर्न मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, वी टॉक्ड अबाउट दिस दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट डिवाइस मैनेजमेंट। तो हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट पे मूव क्यों हुए, कुछ बेनिफिट्स तो होगा ओवर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। सो क्या क्या बेनिफिट्स है, एंड दिस इज व्हाट वी सी। It's also a contrast and compare between traditional and modern management. So if we talk about from the perspective of deployment, uh, traditional management was about image management, वहाँ पे image manage किया जाता था devices का, Windows का, and it was high touch requiring IT resources. Modern management is about faster onboarding. We don't uh, create and manage images anymore in modern management, because we take the OEM OS image and we build it from the device setup into a work ready device. From from the aspect of configuration, traditional management was based on group policy objects or group policy हम create करते थे. If in modern management, it is more about profiles and cloud policies that are like defined in conjunction with the security team and the managers. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पे इस स्लाइड पे तो लिखा है मंथली पैच राउंड अप, बट एक्चुअली ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पे मंथली पैचिंग कभी होता नहीं था। इफ यू रिमेंबर बैक इन द डेज ऑफ विंडोज 7 थिंग,
वहाँ पे जो सारे मंथली पैचेस आते थे वो कभी डिवाइसेस पे लगता नहीं था। जब सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3 ऐसे करके पूरा वो कंसोलिडेटेड आता था, उसका इमेज बना के पैच करता था। So it was not a monthly continuous patcher, whereas in modern management we see a continuous patching and a full patching. ऐसा नहीं है कि selective patching हो रहा है. Uh, App management in traditional management was also resource intensive, whereas in modern management uh, they have tried to make it more easier. And for the security perspective, traditional management was more about reactive IT, whereas modern management is about proactiveness. And all this, the benefits that they give is it boosts workforce productivity, it enables hybrid work, it improves efficiency and self-service and automation, it helps to control cost, minimizes maintenance, reduces total cost of ownership, and it also helps to reduce the carbon footprint. So it's an employee first, compelling experience, and measuring the value thing. Any questions? No, Joy. Nope. नहीं पूछ सकते हो, कोई है ऐसा नहीं, मैं डांटूंगा नहीं. नहीं clear है. Okay, so we talked about modern workplace, we talked about modern device management, we talked about the benefits of modern over, and we also talk like we have a behind the scenes information, like अभी जो हमने बात किया कि क्यों ये चेंज स्टार्ट हुआ, कैसे चेंज स्टार्ट हुआ. So we know something around 2015, 2016, 2017, ये सब अराउंड से ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, मॉडर्न मैनेजमेंट का ये सब आया. बट BYOD is also an important part of this modern workplace. So can anyone point me to that particular event in time, like going back 2023 में तो नहीं हुआ, ये BYOD जो स्टार्ट हुआ, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसको we can take कि this is the starting point of BYOD? Can anyone point? तुमको बहुत साल पीछे जाना Yeah, during पड़ेगा, the but COVID. try. अभिजीत बोलो. कोविड के टाइम पे ज्यादा हुआ था. Bring your own device, because people were not able to visit office and collect their own device, collect their. ना बट ब्रिंग योर ओन डिवाइस कोविड के टाइम में ज्यादा हुआ था, बट उससे पहले भी तो हम यूज करते थे. क्योंकि सी आई एम अ 2015 बीटेक ग्रेजुएट. ठीक है, तो 2015 के दिसंबर से मैंने काम चालू किया था. फर्स्ट मैं टीसीएस में था. उस टाइम पे जब मैंने इंट्यून पे काम किया था, डीआईजीओ अकाउंट था. एट दैट टाइम ऑल्सो मैं अपने पर्सनल मोबाइल पे आउटलुक कॉन्फ़िगर था, तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ बीवाईओडी. IMAP, POP, and active sync protocols were initially used as a BYOD. And अगर पूरा legacy वे में device management लेंगे तो BlackBerry was first part. ठीक है, आई मैप पॉप और उसको मैं छोड़ दूंगा, ब्लैकबेरी को मैं रखूंगा. दिस इज अ गुड पॉइंट. शिवम और रजित, कोई ट्राई करना चाहोगे कुछ? नहीं It मेरे को might तो आइडिया नहीं है. it might अच्छा, be below, मतलब before 2010, which I feel, दैट इज करेक्ट. but not sure what happened.
अच्छा ठीक है। सो हम लोग थोड़ा टाइम के पीछे चलते हैं, 2023 से अभी हम लोग किधर जाएंगे? 2009। नो, 2005, नहीं, 25 और 6। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम लोग किधर जाते हैं। सो सौरभ ने जैसे बोला, एकदम सही बोला कि इट ऑल स्टार्टेड विद द ब्लैकबेरीज इन द 2000। पहला ब्लैकबेरी लॉन्च हुआ था 2000 में, एंड दिस वाज इट, वी स्टार्टेड एवरीथिंग। लाइक अभी के ज़माने में इट्स इजी टू फॉरगेट, क्योंकि अभी हम लोग के पास एप्पल्स एंड एंड्रॉयड जितने सारे आ गए, बट ड्यूरिंग द 2000 पीरियड इट वाज ब्लैकबेरी हु ओन्ड द बिजनेस स्मार्टफोन मार्केट। उस जमाने में ये गेम चेंजर था। ये जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर करता था, देयर वाज, मतलब इसका कोई कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे। बट देन मोबाइल डिवाइसेस का उस टाइम पे भी, व्हेन ब्लैकबेरी वाज देयर, देयर वेर अदर फोन्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल फोन्स नहीं था उस टाइम पे। नोकिया, मोटरोला, वो सब तो बहुत काम कर रहे थे, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में मोबाइल्स निकाल रहे थे, बट दोज फोन्स वेर नॉट स्मार्टफोन्स। ब्लैकबेरी उस टाइम पे वाज अ रियल स्मार्टफोन। एंड ऑब्वियसली उसके बाद 2007 में क्या हुआ था? सैमसंग। नहीं, सैमसंग नहीं। एक महान आत्मा ने कुछ महान काम किया था। एप्पल। 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। एंड ये आईफोन जैसे लॉन्च हुआ, दुनिया बावला हो गया। और उसके बाद से एंड्रॉइड्स। इसके बाद मार्केट में इतने मोबाइल डिवाइस आए और सारे के सारे, मतलब सब स्मार्टफोन्स होने लगे। उसके बाद में वो फीचर फोन तो मतलब गायब ही हो गया। एंड यही तुम्हारा BYOD ट्रेंड का, आज का जो मॉडर्न वर्कप्लेस जो है, BYOD, ये सब इसका स्टार्टिंग इधर से है। सो ये टाइम फ्रेम है। बट ये जो चीज है, दिस गिव राइज टू वन phenomenon, and that is called consumerization of technology. uh, नहीं, ये तुम लोग को डिफेंड करने नहीं बोलूंगा, ठीक है। सो द प्रोलिफरेशन ऑफ डिवाइसेस इन एंड अराउंड ह्यूमन लाइफ, मतलब वो स्मार्टफोन्स जैसे आए, एप्पल, सैमसंग, सबका उस टाइम पे तो और भी सारे थे। तुम्हारे हुआई तो अभी तो उसका GMS लाइसेंस कैंसिल हो गया, बट उस टाइम पे तो थे HTC और ये सब। सो जो हमने वो स्मार्टफोन्स पे जो इम्प्रूवमेंट्स और जो देखे, एंड सच बोले तो द वे वी इंटरेक्ट विथ टेक्नोलॉजी now was because of those improvements back in those days with the devices, and today it has changed the way we interact with the world. सच है कि नहीं है? Right. Correct. बिना टेक्नोलॉजी के आज हम लोग जिंदगी सोच नहीं सकते हैं। And we invest in devices and technology that allows us to freely move back and forth between devices to get things done. आज मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, उस पे कुछ काम कर रहा हूँ। अगर मैं, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, छोड़ो, इसमें कुछ काम कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं जब अपने दूसरे डिवाइस पे मूव करूँ,
तो मैं वहीं से पिकअप कर पाऊँ। अगर नहीं है तो उस टाइम पे अगर नहीं होता है तो तब हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब ये कैसा डिवाइस है, इस पे तो हो ही नहीं रहा है, क्यों खरीद लिया इसको। This is the way now we interact with the world. This is the way we invest in technology and devices that helps to make life easier for us. And ये जो consumerization जो term है, this word consumerization is defined as the act of buying personal or household items in such a way that we can also probably make use of them in our work. And ये this consumerization of technology is happening all around us on a daily basis. हम लोग अभी वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट कि अच्छा इसमें तो ये जो चीज़ है ये कंज्यूमराइजेशन टेक्नोलॉजी है। आज मैं छोटे से एक बात है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल शैडो आईटी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कैन एनीवन डिफाइन शैडो आईटी? ये टॉपिक से थोड़ा बाहर है बट फिर भी। हेलो, 1 2 3। No idea. राजीव? No idea, Joy. Even I don't have any idea. Yeah, no idea. अच्छा, शैडो आईटी is the term given to that particular behavior of an employee when it tries to do something but that try is restricted or it's not permitted because of any security policy, but that employee finds an alternate solution of doing that thing anyway. Simple example, uh, email का कुछ attachment आया, I cannot download it to my device, is a security policy. तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया। मैंने क्या किया, मेरे पास दूसरा फ़ोन है, मैं जो फ़ोन पे पॉलिसी है उस फ़ोन पे अटैचमेंट खोला, दूसरे फ़ोन से उसका फ़ोटो खींचा, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया। दिस इज अ शैडो आईटी, राइट? ले मतलब शैडो आईटी का राइट नहीं पूछ रहा, सिक्योरिटी पॉलिसी था वो तो हुआ, मेरा काम तो हो गया एज अ यूजर। मुझे चाहिए था कि वो डेटा फॉरवर्ड हो, अभी मैं इस डिवाइस से कर नहीं पा रहा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ सिक्योरिटी, बट मैंने काम तो कर दिया। सो ऐसे ही करके मतलब कंज्यूमराइजेशन, अभी वो काम मैंने किससे किया, मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है जिससे मैंने फोटो खींचा और भेज दिया। तो वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ थिंग्स दैट वी डू बट विच आर इंटर रिलेटेड विथ ऑल दिस थिंग्स। एंड यही बिहेवियर, दिस कंज्यूमराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट टुक द आईटी वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म। क्यों? मतलब मैं अगर सिंपल देखूँ, ये मोबाइल्स और ये सब तो लॉन्च जो हुआ था और मार्केट जो फ्लड हुआ था, मतलब अभी भी मार्केट फ्लडेड ही है ये सारे डिवाइसेस से, बट ये तो मास मार्केट है, मतलब इट्स फॉर द मास पीपल। तो इससे आईटी क्यों अफेक्टेड है? ये सब कुछ तुम लोग इतना चुप करके कैसे बैठ सकते हो? Joy, since it's a mass market and our dependency has gone on from laptops to mobiles now on day-to-day basis. This has been cached as an IT where
Now we are not restricted to only one platform or a one device, rather than we have moved beyond that. उसकी वजह से IT has cached that, to get cache that and bring more services. तो वो mass का हमें फायदा मिल रहा है in terms of businesses. सबके पास मल्टीपल डिवाइसेस है मतलब, that's why. करेक्ट है, बिकॉज जो पीपल है वही कंज्यूमर है और Correct. वही एम्प्लॉय है. Right. So it was not long after that the smartphones came into the existence. Uh, People like us started using them to consume corporate data on the move, and we saw organizations trying to come up with different strategies to accommodate this rise of mobile devices in the workplace environment, right? ऐसा तो नहीं था कि एम्प्लॉय ने मोबाइल ला के ऑफिस में लाना स्टार्ट किया और सारे ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया. देयर वेर आइटरेशंस एंड थिंग्स, स्ट्रेटजीज चेंज हुआ, सिक्योरिटी पॉलिसीज चेंज हुआ, बहुत कुछ हुआ. उसके बाद से ये धीरे धीरे एक्सेप्टेड होने लगा, एंड द रिजल्ट इज व्हाट वी नो टुडे एज द BYOD ट्रेंड. So bring your own device trend. If someone asks you what is this trend, so it's nothing but a trend that enables the employees to use their personal devices to access workplace data, allowing them to be productive irrespective of the location or time. So again, like just the way we did with modern workplace, modern device management, things like that, before we move forward, we would like to first discuss why BYOD is considered as an important industry changing trend, and uh, what are the benefits and if any negatives of BYOD. So पॉजिटिव्स ऑफ BYOD अगर मैं पूछूंगा तो सब कोई बोलेगा फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, राइट? Yes. Yeah. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ BYOD क्या आता है? इट्स इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, because with BYOD, an employee does not have to wait to reach to the office to reply to emails or fix meetings. Instead, they can do it from their mobile device and then utilize the saved time to complete other tasks, right? So increased efficiency, then there is increased productivity, there is एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, बिकॉज वी आर अलाउइंग द एम्प्लॉय टू यूज अ डिवाइस दैट दे आर कंफर्टेबल विथ. So employee satisfaction, and this all results in savings for the organization as well, because uh, BYOD allow करके enterprises are able to do a cost cutting on their part, right? So these are the four positive pillars of BYOD that we can say. Uh, but BYOD का कुछ negatives भी होगा. Can anyone like try? It could be uh, some part of security also breach and privacy of the user. Yeah. And I'd say more related to privacy. ठीक है, तो मतलब कुल मिला के प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच और सिक्योरिटी, these are the negatives, right? So which is absolutely true. The greater access to enterprise data from personal devices, it reduces the attack, sorry, not reduces, it increases the attack surface for security threats. So
Eh, it's more easier to compromise a personal device than a corporate device. So if the rollout of BYOD is not properly understood, it can threaten the foundations of IT security and risk a company's business. Also, before an organization can embrace BYOD, it needs to be prepared to handle questions like, so abhi organizations need, I will talk about, like, say if you are the IT admin who is going to embrace BYOD for your organization, then how will you handle malware? The most glaring negative of a BYOD policy is that as the IT department or as an IT admin, I do not have a control over the hardware. I cannot dictate what apps or programs the employees can or cannot install on their personal devices. Can I? No. No. अच्छा, तो मैं अगर एम्प्लॉयज को उससे रोक नहीं सकता, then how can I guarantee a security of that device? Hi, Joy. So I have created a policy few days back in the Intune अभी enrollment इंट्यून policy. के बारे में बात नहीं, अभी इंट्यून के बारे में बात नहीं. अच्छा It's अच्छा, नहीं it's मतलब हाँ it's a मैं बोल रहा fact. था कि अभी ये, हाँ, हाँ it's about understanding कि how will you handle this. अभी इंट्यून आया नहीं अच्छा सीन पे. अच्छा मतलब सिर्फ कंपनी के यू कैन जस्ट यू From कैनॉट company ऑब्वियसली। perspective, like हाँ Intune or see, when I am giving a training, obviously Intune is nothing but a technology. उसमें तुमको लॉजिक से काम करना है. पॉलिसी एंड प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो एक बार देखोगे तो उसके लिए एक्चुअली बीटेक या ये सब चीज के कोई जरूरत नहीं है. अगर एक क्लास 10-12 के बच्चे को भी तुम बोलोगे एक बार दिखा के कि ये ऐसे पॉलिसी क्रिएट होता है, दे कैन ऑल्सो डू लॉग इन करके वो भी पॉलिसी क्रिएट कर देगा. एज एन आईटी एडमिन, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग के कैरियर ग्रोथ, हम लोग को सोचना, बिकॉज टुडे वी मे बी इन अ पोजिशन कि वी आर क्रिएटिंग पॉलिसी, टुमारो वी मे बी इन अ पोजिशन वेयर वी आर डिक्टेटिंग अ department. We will be the responsible one for taking a decision whether something will be rolled out or something will not be rolled out. उस केस में if you are in the position in a company currently right now where there is a decision going on whether or whether not to roll out BYOD, उस टाइम पे क्या क्या सिनेरियोस तुमको कंसिडर करना है. It's this is what we are talking about now. तो उसमें मैलवेयर वाला तो एक कॉन्सेप्ट है, तुमको सोचना होगा, बिकॉज you cannot stop a person from downloading things on their personal devices and from questionable games to suspicious PDFs. So you don't know what might be on the device. That device might be affected with a malware, and if they are accessing corporate data from that device, it's a security risk for you. The next thing is compliance. Compliance कैसे आया? Anyone try? Not meeting And this the. compliance is not about Ach- device compliance. ये डिवाइस के compliance के बारे में बात नहीं कर रहा है. It's talking about data compliance. ठीक है. Certain industries है जैसे healthcare, they have to follow strict regulations about using and distributing of information, right? Patients का information they cannot share or like keep it open, right? तो
फॉर हेल्थ केयर कंपनीज उसके साथ एज अ सर्विस पार्टनर भी अगर कोई काम करता है, they must also comply with these regulations. In such cases, say the partner company has allowed BYOD and an employee of that partner company is working for that healthcare firm, that employee accesses the data, keeps it on his personal device, and a data leak happens. Who is liable? कंपनी लायबल है कि एम्प्लॉय लायबल है कि वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो ओरिजिनल कंपनी है वो लायबल है? ओरिजिनल कंपनी। ओरिजिनल कंपनी ने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया इस कंपनी सर्विस पार्टनर को। एम्प्लॉय तब जाके खुद बोलेगा कि मैं तो पर्सनल डिवाइस यूज किया बिकॉज इट इज अलाउड इन द पॉलिसी ऑफ माय कंपनी। राइट। तो ये लूप क्रिएट होगा। सो the only point of talking about all these points is that you need to think of all of these things before doing a rollout. अभी हम लोग BYOD के लिए बात कर रहे हैं तो हम BYOD के एस्पेक्ट्स में ये सब पॉइंट्स बात कर रहे हैं। मे बी वी आर रोलिंग आउट समथिंग डिफरेंट, मे बी। तो उस केस में हमको मतलब ऐसे when we are working as an SME architect or things like that, we need to think about the larger aspect. ऐसे ही नहीं कि इसको रोल आउट करना है, हाँ दिस इज ये तो वेरी इजी है, दो पॉलिसी मैं क्रिएट करूंगा, इसको अभी ग्रुप बना के डिप्लॉय कर दूंगा, आपका हो जाएगा, काम तो हो जाएगा। बट यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। उसका रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, तुम लोगे क्या अगर कुछ होता है तो? अगर तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, इफ यू डोंट थिंक अबाउट द सराउंडिंग एस्पेक्ट्स, देन यू आर ओनली गुड एज एन आईटी एडमिन जो कि एक पॉलिसी क्रिएट किया और छोड़ दिया। बट यू आर नॉट एन आईटी एडमिन, राइट? वी वांट टू बी समथिंग मोर देन दैट। दैट इज व्हाई वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल द अदर एस्पेक्ट्स कि आज जो मैं ये पॉलिसी क्रिएट करूंगा उसका मुझे डायरेक्ट तो मुझे पता है कि इसका आउटकम ये है, रिजल्ट ये होगा, मुझे ये चाहिए, लेकिन ये हो जाने के बाद आसपास में और क्या हो रहा है? हाँ, सो BYOD के एस्पेक्ट में लास्ट थिंग जो हमको कंसिडर करना होता है दैट इज डेटा लॉस। नाउ इसमें मैं पूरा नहीं करूंगा बट एक ही मतलब दो तीन क्वेश्चंस करूंगा। What happens to the corporate data that is residing on the personal device when the employee leaves the organization? How will you take care of that? Or the second question is, if the employee is fired or terminated and the company initiates a wipe on the device, and as part of that wipe process, if accidentally personal data of the device also gets deleted, who will be liable? The employee can sue the organization. Further, you have a suspicious और तुमको there is a particular employee जिसने data leak किया है, you have a suspicion. Can you go and ask that user to hand over their personal phone so that you can check whether the data leak happened or not? That is not possible. Like for a personal तो device. ये जॉय सब इन कुछ चीज डेटा लॉस के लिए तो वी कैन क्रिएट अ पॉलिसी, राइट? मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम शेयरिंग योर डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स,
We can have policies like that data can't be pasted to any other place, or that data can't be downloaded or residing within my personal device. So that is possible using the app protection policy. मतलब Intune के terms में बोल रहा हूँ मैंने मैं. कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि पॉलिसी से रेस्ट्रिक्टेड है, मैंने फोटो खींच के उसका भेज दिया व्हाट्सएप में. हाउ हाँ विल हाँ यू हाँ. स्टॉप दैट? That, yeah, that is not there. Yeah. सो हम जब कुछ को रोल आउट करते हैं, वी आर रोलिंग आउट BYOD. मे बी आज कोई भी वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हमारे पास फ्रीलांस प्रोजेक्ट आता है. लेट अस कंसीडर फ्रीलांस प्रोजेक्ट आता है, एक कंपनी आके मुझे बोलता है कि वी वांट टू एनेबल BYOD फॉर एम्प्लॉइज, कैन यू क्रिएट अ फ्यू पॉलिसीज और कैन यू रोल आउट BYOD फॉर अस. हम तो बोल देंगे BYOD तो रोल आउट कर देंगे, ये सब, लेकिन उसके बाद कंपनी का क्या होगा? मतलब हमने तो एनेबल कर दिया. सी, रोलिंग आउट अ थिंग इज नॉट द मैटर. You have to create a framework of policies around that. और वो पॉलिसी जो तुम बनाओगे, दैट BYOD पॉलिसी, हर एक कंपनी का खुद का एक पॉलिसी होता है. तुमको रोल आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यू हैव टू टॉक विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट इज योर पॉलिसी, हाउ विल यू टैकल विद दिस सिचुएशन. आज मैं ये रोल आउट तो कर दूंगा, कल आके आप समझ लो तुमने एक पॉलिसी बनाया, तुमने अपना बेस दिया पॉलिसी को, बट स्टिल अ डेटा लीक है. कंपनी देखेगा रोल आउट ये किया था, वो आके तुम्हारे ऊपर बोला कि बिल फरा कि तुमने ये किया था, इसके लिए मेरा आज ये डेटा लीक हुआ, इसके वजह से मेरे अगेंस्ट में ये लॉ सूट चल रहा है, पेनल्टी अब तुम भरोगे, इधर तुम टर्मिनेट हो या फिर तुम पे आउट करो. हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ? इसीलिए कभी भी कुछ भी रोल आउट जब होता है, यू हैव टू मेक योर ओन पाथ क्लियर कि मैं तो रोल आउट कर दूंगा, ये पॉलिसीज क्रिएट कर दूंगा, बट ये हर एक चीज का अलग होता है. जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर BYOD एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट malware compliance and data loss. There will be some other aspects for other thing that is rolling out, but I will have to point out that कि ये aspect है, have you thought about this, does your policy consider all these facts? क्योंकि कल आगे जाके कुछ होगा, I will not be responsible. इसके बाद आपको करना है तो बोलो, मैं करके देता हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा. जॉय, वो कंप्लाइंस का जो आपने बोला था वो एक बार और बोलो क्या. डेटा लॉस एंड मैनवेयर इज फाइन, कंप्लाइंस का. कंप्लायंस का इस केस है, सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, दे हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस. उस केस में इफ यू आर वर्किंग फॉर सच अ इंडस्ट्री and you allow BYOD devices, how will you take care of the data that is residing on the personal device? Because allowing an employee to access confidential data from their personal device in an industry which follows strict regulations increases the likelihood of compliance failure, such as the employees may fail to appropriately secure the confidential data. They may accidentally share the private data with those who do not have the right to see it. And personal device may not be encrypted. The data is there on the device storage. What happens to it if the device gets lost or stolen? All of these scenarios can lead to various legal, privacy, and
security concerns. यही compliance का बात है. And that is the reason why we see कि BYOD trend, even if it is popular, it is not allowed in certain job sectors and certain job functions. इसीलिए BYOD is only accepted up to a varying extent per organization. क्योंकि उन सबको ये पॉलिसीज के बारे में सोचना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आया आज मुझे BYOD रोल आउट करना है, सारे एम्प्लॉयज के लिए रोल आउट कर दिए. ऐसा कभी नहीं होता है. हाँ, now for example Atos is an IT company. It can and it has BYOD policies for its employees. But I have worked, like when I was part of Atos, I have worked for one hospital, uh, Baylor Scott and White Hospital for America. And when I was in that project, I was not allowed BYOD because that was the requirement for that particular client because it works in the healthcare function. तो ये सारी चीजें हैं. हाँ, तो as I said, half-baked BYOD policies often create friction between IT and the end users and is just a waste of time, energy and money. So I have personally witnessed some attempts that have failed to consider all the facets of the business when launching a BYOD program. And as a result, their BYOD program experienced poor adoption, pushback from the staff, and ultimately failed. सो फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक BYOD पॉलिसी लॉन्च करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. देर इज़ अ फिक्शनल, लाइक मैं एक फिक्शनल कंपनी चला रहा हूँ एंड मैं उसमें BYOD इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिस पॉलिसी में मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कि यूज़र के पर्सनल डिवाइसेस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. विल दिस पॉलिसी सक्सेस, लाइक ये एम्प्लॉय सक्सेसफुली एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा. सिमिलरली मैंने एक BYOD पॉलिसी लॉन्च किया एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिविटी बूस्ट देने के लिए, उनके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एंड आई डू नॉट थिंक अबाउट एनी ऑफ द सिक्योरिटी थिंग्स, एवरीथिंग, और डेटा लॉस हो गया. लॉस तो अल्टीमेटली मेरा ही होगा ना एज अ कंपनी. एम्प्लॉयज़ तो मेरे हैप्पी है. सो द बेस्ट पॉलिसीज आर क्रिएटेड when IT and security comes together. क्योंकि अगर सिक्योरिटी टीम से पॉलिसी बनाओगे तो एम्प्लॉयज कभी खुश नहीं होंगे, और आईटी टीम से पॉलिसी बनाओगे तो एम्प्लॉयज तो बहुत खुश होंगे लेकिन सिक्योरिटी का एल लग जाएगा. सो इट्स अ 50-50 बिटवीन आईटी एंड सिक्योरिटी. It's a 50-50 between usability, functionality, and security. So, अच्छा, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, दिस इज स्टिल द टाइम ऑफ 2010-9. अच्छा, नहीं, अच्छा ठीक है. मैं इससे पहले आगे जाऊँ फिर. Anyone can tell me the first company which formally accepted BYOD? The first company. Hello, 1, 2, नहीं 3. पता. No idea. It's a very famous organization.
Okay, so Intel क्या? yes, I read about. 2009 it was. 2009 में Intel was the first company which formally and officially accepted its employees bringing personal devices to the workplace. So that is how BYOD got started. But BYOD का और ज़्यादा like फैला, हाँ फैला ही बोल सकता हूँ, ये ट्रेंड और ज़्यादा फैल गया तब जब 2011 ने यूनिसिस यूनिसिस के साथ और एक कंपनी था। तो 2009 में इंटेल इसको स्टार्ट किया था, 2011 में यूनिसिस के साथ और एक कंपनी था, ये दोनों ने मिलके BYOD को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद से तो BYOD, जैसे मैंने बोला अभी, मतलब ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, बट टू अ वेरिंग एक्सटेंट, कीपिंग इन माइंड ऑल दोज रेगुलेशंस एंड सिक्योरिटी नीड्स। बट यही BYOD उस टाइम पे 2009, 2010, 11, 2015, उस टाइम पे वर्क प्लेस तभी भी मॉडर्न नहीं हुआ। दे were still using traditional workplace, so devices were traditionally managed. So this BYOD created a big problem for the IT. IT का हालत कुछ ऐसा था उस टाइम पे BYOD आने के लिए। दिस मजाक है, बट सच में ऐसा ही था। बिकॉज क्यों प्रॉब्लम था? Because the IT departments had to deal with the sudden influx of all such mobile devices of different OS platforms, apps and data on a scale that was never seen before. मतलब इससे पहले IT was only infrastructure, वो जो भी था, it was only about managing Windows corporate PCs और servers। मतलब यही था। ये सारे तो आउट ऑफ सिलेबस अचानक बाहर से आ गया, इनका वो करे क्या? जो ट्रेडिशनल वर्कप्लेस सेटअप था, जो ट्रेडिशनल डिवाइस मैनेजमेंट था, those traditional device management softwares were not capable enough to manage these mobile devices. तो वो लोग इसका करे क्या? And that is why IT organization नहीं, वर्कप्लेस IT of every organization, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक IT टीम तो होता है, तो workplace IT of every organization faced a major challenge because of the BYOD. So on the other side, वहाँ पे ये है कि users started expecting a consistent access to corporate resources and equally consistent experience across variety of devices that they use. इसका example एक है कि consider there is a user named Rose. She has a Windows laptop. She also has a number of mobile devices. iOS भी हो सकता है, Android भी हो सकता है, and she also has a couple of tablets. Some of these devices are provided to her by the company she works for. Some of the devices is her personal devices. Now, this user does not care who owns the device. She just wants to access her work on whatever device she happens to be using at that time. Since some of the devices are her own, she doesn't really care much about the management of these devices, but she knows that there is some degree of regulation required, and she is happy to accept a few corporate policies on her personal device as long as they are not too intrusive. यही हर एक एम्प्लॉय का स्टोरी है, राइट? आज के अगर हम बात करें
मैं एक आईफोन यूज़ करता हूँ, मैं एक एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, मैं एक टैबलेट यूज़ करता हूँ, मैं एक ऑफिस का लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि आई वुड बी एबल टू डू माई वर्क। अभी मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, शाम को मैं चाय पीने बाहर निकलता हूँ, उस टाइम पे ऑफिस का कोई पिंग आया या फिर ईमेल आया, मैं क्विकली अगर रिप्लाई कर पाऊँ तो मेरे मोबाइल में आउटलुक और टीम्स उसके लिए कॉन्फ़िगर्ड है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आई वुड बी एबल टू कंटिन्यू माई वर्क फ्रॉम एनी डिवाइस। हाँ, अभी ये आईफोन मेरा पर्सनल है, तो मैं इसको एनरोल करूँ कि ना करूँ, दैट इज़ माई पर्सनल डिसीजन। बट उसमें मेरा यही सिर्फ होगा, एज अ यूज़र आई विल बी हैप्पी टू एनरोल द डिवाइस इफ इट इज़ नॉट टू मच रेस्ट्रिक्टिव। लाइक मेरा डिवाइस है, एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी ने तो नहीं दिया, मेरा डिवाइस है। हाँ, मैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूज़ के लिए मैं इसको एनरोल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इस पे कुछ तो सिक्योरिटी आएगा, बट दैट इज़ फाइन, आई एम फाइन टू एक्सेप्ट दैट, जब तक मेरा नॉर्मल वर्क फ्लो जो है डिवाइस का वो हैम्पर ना हो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय, एंड यही से होता है कि लाइक suddenly because of this BYOD, workplace IT was not just about managing corporate pieces on the corporate network anymore. But इसी से क्वेश्चन आता है, जस्ट फॉर वन एग्जांपल, ये जो डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो अचानक ये मोबाइल डिवाइसेस से फ्लो होना स्टार्ट किया, हाउ कैन द आईटी एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दैट? ट्रेडिशनल डिवाइस मैनेजमेंट से तो वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, इसीलिए ना उन लोग का जला पड़ा था। तो ये जो आज जाते जाते कोई भी आउटलुक से जा रहा है, या टीम्स कंसिडर कर लो, या कोई भी और भी चीज है, जो डेटा ये जो फ्लो कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करे? नॉट पॉसिबल विथ ट्रेडिशनल डिवाइस मैनेजमेंट। Right. सिमिलरली, तो इसके लिए भी एक चेंज जरूरी था। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इज व्हाट गिव राइज टू द मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। जब तक नीड नहीं होता तब तक उस प्रोडक्ट का इमरजेंस भी नहीं होता। नीड है तो प्रोडक्ट है, नीड नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं है। सो द existing traditional workplace setup was no good for this BYOD challenges, and workplace IT के पास at that point of time they had only two options, either to block BYOD completely or to allow BYOD with all access। Otherwise traditional device management से possible नहीं था। So to successfully embrace the BYOD trend and meet the mobility requirements of the modern times, organizations needed two things: a change in its IT approach and to empower their IT with specialized tools that can help manage these new mobile devices. And as a result, we saw the emergence of the mobile device management solutions. 2009 से BYOD स्टार्ट हुआ, एक्चुअली इंटेल ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। 2011 में यूनिसिस एंड वो दूसरा कंपनी में भूल गया, उससे स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे उसके हिसाब से मैंने बोला था तुमको कि वर्कप्लेस आईटी का लगा पड़ा था फ्रॉम अराउंड 2012, अर्ली 2011 नहीं, लेट 2011 से लेट 2012 2013 के आसपास मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आना स्टार्ट हुआ। एयर वॉच, अभी तो तुम्हारा वर्क स्पेस वन है, उस टाइम पे एयर वॉच ऐसे करके आया था।
और उसके बाद और भी सारे प्रोडक्ट्स फॉलो अप हुए, इंट्यून भी उसमें से एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का स्टार्ट हुआ, और यही मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो है ये आगे चलते इवॉल्व होते होते यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट बना, जो कि अभी मॉडर्न वर्कप्लेस का कोर हिस्सा है। बट मैं अभी भी उसी टाइम फ्रेम में हूँ, 2013 से 2015 के टाइम में। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट solution was a separate solution than the traditional management that was already existing. So it was not like कि आज जैसे हम लोग विंडोज डेस्कटॉप, विंडोज लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस, एप्पल मैक सब कुछ ये इंट्यून से मैनेज कर लेते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। लाइक SCCM was used for the corporate Windows desktop and laptop. SCCM के पास मोबाइल डिवाइसेस के कैपेबिलिटी नहीं था, तो इसके लिए MDM ये सॉल्यूशंस आया। अभी समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन SCCM यूज कर रहा है और उसको BYOD एक्सेप्ट करने के लिए उसने एयर वॉच भी लिया, ठीक है। तो नाउ अभी IT को क्या करना पड़ रहा है, वो IT का सैलरी तो बढ़ा नहीं, उसका नौकरी हुआ था SCCM देखने के लिए, लेकिन उसको अभी SCCM के साथ साथ एयर वॉच भी देखना पड़ रहा है। तो उसमें IT का खुशी होगा कि दुख होगा? दुखी हुआ। दुख होगा। तो the emergence of these MDM solutions resulted in a heterogeneous IT environment which was more like which worsened the situations of the IT admins more. मतलब BYOD ने तो ऑलरेडी जला के रखा था, इसने आके नमक छिड़क दिया। तो मैंने कुछ देर पहले एक चीज बोला था, जब तक नीड नहीं आता तब तक उसका मतलब उस पे काम नहीं किया जाता, राइट? यस। इस पॉइंट से नीड स्टार्ट हुआ कि देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड सॉल्यूशन, एंड इस पॉइंट से जाके तुम्हारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द MDM टू EMM टू UEM, जो अभी हम लोग देखते हैं। सो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट टू एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट टू यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट। सो define अगर करें, where MDM only focused on the device management aspect, taking care of the device life cycle. EMM took care of the other aspects as well, along with the device life cycle, like it took care of the app management, uh, configuration, security, and email management. But neither MDM nor EMM were able to solve the distributed admin efforts that was burdening the IT. तो MDM और EMM जो solutions थे, ये solutions अलग ही solutions थे, और ट्रेडिशनल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशन अलग ही चल रहा था। यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन जब आया, it brought the management of all the workplace endpoints under a single unified solution, and thus this is how UEM became the new MDM of today. तो अगर सिंपल हम लोग जब बात करते हैं, इंट्यून एक MDM प्रोडक्ट भी है, क्योंकि इंट्यून MDM प्रोडक्ट कह के ही आया था मार्केट पे। उसके बाद इंट्यून इवॉल्व होके एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी बना, और आज इंट्यून एक यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी है। सो व्हेन वी से दैट like MDM, EMM or UEM, they all refer to the same thing which is relevant to this time. कल जाके मुझे नहीं पता कि UEM से इवॉल्व होके और भी कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं, आज के डेट में तो मुझे नहीं पता। लेकिन आज भी अगर कोई MDM बोलेगा तो मुझे वो कोरिलेशन मेरे दिमाग में चलेगा कि हाँ MDM बोल रहे हैं मतलब यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट ही बोल रहे हैं,
बिकॉज टुडे आई वुंट एक्सपेक्ट कि मैं जाके एक दूसरे सिस्टम से डेस्कटॉप को मैनेज करूंगा और एक दूसरे सिस्टम से मोबाइल को मैनेज करूंगा, राइट? यस। तो कुल मिला के यही कहानी है। आशा करते हैं तुम लोग को अच्छा लगा। जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज। आपने कहा द एवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम एमडीएम टू ईएमएम एंड नाउ वी आर इन यूएम। ये एवोल्यूशन राउंड अबाउट आपका 2014 का राउंड स्टार्ट हुआ फॉर एमडीएम, मतलब मींस फॉर दिस मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का। हाँ, सो ये जो फेज आया एमडीएम टू ईएमएम, ये कब, व्हाट इज द टाइम लैप्स इन दीस टू बिटवीन, when we can say that this started with 2014 and it now EMM has come into picture at what side of phase, किस phase में आया वो? प्योर एमडीएम जो था, प्योर एमडीएम, ओनली एमडीएम, that was around the time of late 2011 to early 2013. that was pure MDM. उस टाइम पे मत सिर्फ मोबाइल मतलब डिवाइस को ही मैनेज किया जा सकता था, ऐप को मैनेज नहीं होता। फ्रॉम अर्ली 2014 टू से 2019 तक इट वाज ईएमएम। Okay. From early 2014 to 2019 it was EMM। Okay. क्योंकि मैं अगर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही बात करूं, 2019 तक भी इंट्यून वाज नॉट अ यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट, क्योंकि Part of Azure. पार्ट ऑफ एज्योर तो वो एज्योर वाला मूवमेंट तो तुम्हारा 2016 के अराउंड हुआ था। वो ईएमएम था, लेकिन उस टाइम पे भी माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा था, एससीसीएम एंड इंट्यून को अलग अलग लाइसेंसिंग पे बेच रहा था। 2020 तुम्हारा कोविड आया, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर रीब्रांडिंग हुआ। जब एससीसीएम और इंट्यून को एक किया गया, दैट वाज अ फेल्ड रीब्रांडिंग, बट छोड़ दो। बट दैट इज द टाइम फ्रेम फ्रॉम वेयर इंट्यून बिकेम अ यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट। और 3 साल गया, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर वाला रीब्रांडिंग को फिर से फेंक दिया और माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून को वापस ला दिया, क्योंकि पहले से माइक्रोसॉफ्ट को भी पता था। वो टॉपिक में मैं बाद में जाऊंगा एससीसीएम और इंट्यून का, लेकिन टाइम फ्रेम तुम्हारा यही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर देखो, क्योंकि Okay. इंट्यून का भी मैं टाइम फ्रेम में जाऊंगा, बट पहले अगर मैं बोलूं तुमको, इंट्यून एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ, मतलब इंट्यून मार्केट में कब आया था? Around 14. 2011। अच्छा, अभी तो हम लोग इस इंट्यून का पहला नाम क्या था? विंडोज इंट्यून। हाँ, विंडोज इंट्यून 2011 में आया था। 2014 में रीनेम हुआ था फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। 2014 में रीनेम हुआ था, एंड 2014 में इट वाज मेड अवेलेबल, मतलब कमर्शियल अवेलेबल फर्स्ट 2014 में किया गया था, लेकिन प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट इंट्यून 2011 में ही आ चुका था। राइट। ठीक है, 2014 में माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून उसका रीब्रांड हुआ, वो आया, लेकिन ये फेज भी तुम्हारा, हाँ, उस टाइम पे जो इंट्यून आया, इंट्यून का और एक चीज था। पहले वो 2014-2015 में जो कमर्शियल यूजेज पे इंट्यून आया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंट्यून यूजेस द ओल्ड लीगेसी, तुम्हारा वो सिल्वर लाइट वाला कंसोल यूज करता था। Silverlight Portal Console. हाँ, तो उस टाइम पे इंट्यून एज्योर पे नहीं था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंट्यून वाज अ प्योर एमडीएम प्रोडक्ट। उस टाइम पे वो एक इंट्यून के एजेंट आया करता था, जो एजेंट इंस्टॉल करके तुमको विंडोज पी लैपटॉप या डेस्कटॉप को तुम मैनेज कर सकते थे, बट इट वाज नॉट इफेक्टिव और एफिशिएंट, और उससे ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो Intune PC मैनेजमेंट वाला ना?
हाँ, इंट्यून पीसी मैनेजमेंट वाला। लेकिन उसके बाद इंट्यून को फिर रिकोड किया गया, उसको एज्योर पे शिफ्ट किया गया, एंड देन इट बिकेम अ एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें तुम्हारा ऐप प्रोटेक्शन, ऐप मैनेजमेंट, वो सब डाला गया। और वो चलता गया 2019 तक, जैसे मैंने बोला। फिर 2020 पे माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई, ये जो यूनिफाई हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर रीब्रांडिंग का, ये अटेम्प्ट भी बहुत पहले से चालू था। तुम्हारा एससीसीएम के साथ एक बार तुम्हारा इंट्यून का हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन बीच में आया था, जो बाद में फिर डेप्रिकेट कर दिया गया था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई बहुत किए। हाँ, ऑब्वियसली देखो, एक बार में तो एक प्रोडक्ट एकदम राइट स्पॉट पे हिट नहीं कर सकता था। ट्रायल एंड एरर मेथड से तुमको जाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी वो किया, उसको जो जो करना था उसने किया। और उसने बाद में देखा कि इंट्यून इनफ इज ओके, तो एससीसीएम के साथ उसको नहीं चाहिए, तो अभी जाके उसको फाइनली छोड़ दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एससीसीएम भी कहीं जाने वाला है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेनली, जो कि पहले भी एससीसीएम में थे और इसके बाद भी एससीसीएम में ही कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, इंट्यून में सर्वर का मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज अभी ऐड किया जाएगा, तो उसके बाद भी क्या वो एससीसीएम रहेगा कि नहीं रहेगा वो नहीं पता। I तो believe that capability is already introduced in March 2023. अभी तुम्हारा डिफेंडर तुम्हारा विंडो सर्वर को मैनेज कर सकता है, सो यू कैन मैनेज विंडो सर्वर्स विद डिफेंडर। बट इंट्यून में सर्वर का अभी तक आया नहीं है। इसमें बहुत सारा बात है, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत सारे काज है। एमएमपीसी कोई जानता है फुल फॉर्म क्या है? नो आइडिया। No माइक्रोसॉफ्ट idea. मैनेज प्लेटफॉर्म क्लाउड, एमएमपीसी। ये एक न्यू मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी धीरे धीरे आने वाला है। सो मे बी आगे चल के इंट्यून का नाम फिर से चेंज हो सकता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट मैनेज प्लेटफॉर्म क्लाउड। मतलब अभी क्लाउड से वो लोग सारे भी डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस को मैनेज करेंगे, वो लोग चाह रहे हैं कि सबको यूनिफाई किया जाए फिर से। क्योंकि द प्रॉब्लम नाउ इज अगेन कि वही तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड एडमिन एफर्ट आ रहा है। डिवाइस इंट्यून पे मैनेज हो रहा है, फिर अगर उसको डिफेंडर पे ऑनबोर्ड करना है तो तुमको अलग से डिफेंडर में ऑनबोर्ड करके उसका अगर काम करना है अलग से डिफेंडर पोर्टल पे जाना पड़ रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फिर से इस पे काम कर रहा है कि ये सबको भी कैसे फिर से यूनिफाई किया जाए। तो वो यूनिफाई करने के लिए देयर इज अ न्यू मैनेजमेंट सॉल्यूशन दे आर वर्किंग ऑन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज प्लेटफॉर्म क्लाउड, एमएम। एंड ये ऑलरेडी अभी प्रोडक्शन में है। हम लोग को मतलब मोस्ट ऑफ द इंट्यून एडमिन्स को पता भी नहीं है। बट वो इंट्यून प्रीमियम सूट जो 2 के साथ आता है, जो एंड पॉइंट प्रिविलेज मैनेजमेंट, अगर तुम लोग इंट्यून से एनेबल करते हो तो योर डिवाइस इज बेसिकली इन अ डुअल मैनेजमेंट स्टेट विद इंट्यून एंड एमएमपीसी। तो ये सब मैं बाद में टच करूंगा, आऊंगा लेकिन टच करूंगा। गुड टू नो। सो हमने इतने सारे बात किए, एमडीएम टू ईएमएम टू यूएम, ये सब हुआ, बैक स्टोरी पूछा। तो हम लोग अभी थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट का भी मॉडर्न वर्कप्लेस का जो विजन है वो थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट माइक्रोसॉफ्ट हैज इन देयर विजन। एंड Microsoft's vision of modern workplace is realized by Microsoft 365.
तो Microsoft 365 में क्या आता है, तुम्हारा Azure Active Directory आता है, जो कि अभी फिलहाल फिर से रिब्रांडिंग हो रहा है. तो Azure Active Directory is now Microsoft Intra ID. It is part of the Intra product suites. माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून तो फिर से नाम आ गया, कि नहीं तो अगर कुछ दिन पहले था तो ये माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर रहता. डिफेंडर प्रोडक्ट सारे अलग हो गए हैं. देन देयर इज विंडोज 10 एंड विंडोज 11 द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस 365. सो ये मिला के माइक्रोसॉफ्ट 365 बनता है, एंड दिस इज माइक्रोसॉफ्ट मॉडर्न वर्कप्लेस विजन. तो if we closely look into all these products, जैसे एश्योर एक्टिव डायरेक्टरी, एश्योर एक्टिव डायरेक्टरी को भी लाइक, जैसे हम लोग पुराने हैं तो हम लोग स्टिल एक्टिव डायरेक्टरी कह सकते हैं, बट रिमेंबर लाइक व्हेनेवर आई एम सेइंग एश्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इट्स एक्चुअली इंट्रा आईडी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि न्यू नाम वही है. सो एश्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इंट्यून, डिफेंडर, विंडोज 10, ऑफिस 365, अगर हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स को individually देखें तो they compete in the market with products from other vendors, right? Individually. Intune का competitor देखे तो there is SOTI, there is Workspace ONE, there is और भी जो भी सारे है, Hexnode और भी है. Similarly, Defender products का भी तुम्हारा obviously competitors है, because there is McAfee, there is और क्या क्या है, सीमेंटेक, वो सब कुछ. ऑपरेटिंग सिस्टम एज विंडोज 10, विंडोज 11, ऑब्वियसली उसका भी कंपटीशन है. पेड, हाँ समटाइम्स पेड है, समटाइम्स नॉन पेड भी है, समटाइम्स तुम्हारा वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है, जैसे लिनक्स एंड वो सब. ऑफिस 365 का भी कंपटीशन है फ्रॉम गूगल, गूगल के वर्कस्पेस आता है, फिर तुम्हारा जोहो का भी आता है. तो मतलब बात यही है कि इफ वी लुक इनटू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, दे ऑल हैव देयर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, बट इफ वी लुक एट अ सूट एज अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जब मतलब when we are talking about Microsoft 365, then as a whole this entire product has no competition. कोई भी ऐसा दूसरा वेंडर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो आइडेंटिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोडक्टिविटी एक साथ देता है. एंड यही माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रेंथ है. सो किसी को एग्जांपल चाहिए इसका? या कोई मुझे काउंटर करना चाहेगा कि नहीं ये कंपनी है जो ये सब करता है? देखो सिंपल एग्जांपल देता हूँ. वर्कस्पेस वन. वर्कस्पेस वन माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का कॉम्पिटिटर है. वर्कस्पेस वन का खुद का आइडेंटिटी सिस्टम भी है जो एज्योर एडी से भी करता है कॉम्पीट, बट वर्कस्पेस वन का इक्विवेलेंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट नहीं है जो डिफेंडर से कॉम्पीट करे. वर्कस्पेस वन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. वर्कस्पेस वन का खुद का प्रोडक्टिविटी सूट नहीं है. तो ऐसे करके अगर हम सबको देखें तो ऐसा कोई भी वेंडर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो कि सारे प्रोडक्ट्स एक साथ में बेच रहे हैं और सारे प्रोडक्ट्स उसके हैं. और यही माइक्रोसॉफ्ट के स्ट्रेंथ है. एंड जैसे कि सारे प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, सो ऑब्वियसली दे कैन टेलर इट, सो their solution fits large enterprises. Their solution is fit for SMBs and SMEs, small mid-sized business and small mid-sized enterprises, and their solution is fit for educational institutes as well. But ये Microsoft 365 rebranding, ये भी rebranding ही है.
ये तो मार्केट एफर्ट है एंड ये तो प्रिटी न्यू है, वी नो दैट। ओरिजिनली कौन से ये स्टार्ट हुआ था, कोई बोल सकता है? 2014 में स्टार्ट हुआ था, जब पहले बार इंट्यून को कमर्शियली लॉन्च किया गया था। लेकिन उस टाइम पे कौन से ब्रांड के अंदर लॉन्च किया गया था? बोलो यार, तुम लोग इंट्यून एडमिन हो, लाइसेंसिंग तो पता होगा। हाय रे, एंटरप्राइज मोबिलिटी 2014 में इसी ब्रांड पे लॉन्च किया गया था। Azure AD, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एंड Azure AD RMS को एक बंडल करके माइक्रोसॉफ्ट ने एंटरप्राइज मोबिलिटी के नाम पे लॉन्च किया था, जिसमें बाद में तुम्हारा वो Azure AD क्लाउड प्रोटेक्शन और एक कुछ ऐड करके फिर एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी रीनेम हुआ था। सो यही था माइक्रोसॉफ्ट का लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो व्हेन इट केम टू प्रोटेक्टिंग कॉर्पोरेट डेटा इन अ मोबाइल फर्स्ट क्लाउड फर्स्ट वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट का अप्रोच कुछ डिफरेंट था, बिकॉज if we look into the traditional system, almost all of the corporate data was stored on premises, which means the organizations could use perimeter to manage the access to the corporate data, right? कैसे? एक मिनट रुको, मेरे हेडफोन का बैटरी डाउन हो रहा है, दूसरा हेडफोन पे शिफ्ट करूं। हेलो, 1 2 3, am I audible? Yes. ओके। ये मैं अपने ऑडिबिलिटी चेक नहीं कर रहा था कि मैं ये हेडफोन पे तुम लोग का बात आ रहा है कि नहीं, वो चेक कर रहा था। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉर्पोरेट डेटा ऑन प्रेमिसेस में स्टोर होता था, तो बिल्डिंग में सिक्योरिटी एक्सेस चेक करके और कॉर्पोरेट लैन यूज करके वो डेटा को एक्सेस किया जा सकता था, तो दैट वाज इनफ। बट विद BYOD, जैसे तुम्हारा डेटा क्लाउड और बाहर डिवाइसेस में इंटरनेट में रोम करना स्टार्ट कर दिया, वो पेरीमीटर हट गया, फिजिकल बाउंड्री वो हट गया। तो उसके हिसाब से अभी सिर्फ वो नेटवर्क और वो एक्सेस को प्रोटेक्ट करके डेटा को प्रोटेक्शन हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का अप्रोच क्या था कि वी नीड नाउ 4 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन: आइडेंटिटी, डिवाइस, एप्लीकेशन एंड डेटा। ये चारों के चारों लेयर में प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए वो लोग ने 4 प्रोडक्ट उसके साथ बंडल किया था। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो कि आइडेंटिटी के लिए है, डिवाइस और एप्लीकेशन के लिए इंट्यून, डेटा के लिए एज्योर एडी तुम्हारा वो आरएमएस, एंड क्लाउड ऐप सिक्योरिटी। बट हमको इन सब में फोकस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे करना है, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो हम लोग का टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वी विल फोकस ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। जैसे कुछ स्लाइड पहले मैंने बोला था कि मॉडर्न वर्कप्लेस हैज मॉडर्न डिवाइस मैनेजमेंट एट इट्स हार्ट और एट इट्स कोर। सो सिमिलरली Microsoft's modern workplace vision is realized via Microsoft Intune. अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये प्रोडक्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट डेवलप नहीं करता, तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई मॉडर्न वर्कप्लेस वर्जन नहीं होता। ये प्रोडक्ट है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट 365 आज है।
सो अभी कोई ट्राई करेगा इंट्यून को डिफाइन करने के लिए? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून? वन So टू Joy, it's a थ्री हेलो cloud. करो. Yeah, yeah, it's a Hmm. cloud solution which helps to protect data. It provides flexibility along with security, and it's a unified solution where we can maintain devices. Correct. So एंड अच्छा ये वाला तो ठीक है, ये आंसर ठीक है. व्हाट डिफरेंशिएटेड इंट्यून फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स? Joy, as per my understanding in the cloud architecture, what I see right now, I work as a Microsoft 365 engineer only, where I need to maintain, Microsoft Teams messaging and as well as Intune, some portion of Intune. So what I see that Microsoft provides, a complete solution. It's just like, that the other competitors that we have, we can have AWS, let's say. So in AWS, we might be having a different solution. Like for Azure VMs, we can have workspaces over there. But we do not have any competitors who are providing the messaging solution, the team solutions, whereas the Defender, that is the security, the right management system, Microsoft Intune, and as a whole, everything is provided by Microsoft. So it's just like I'm just giving a lame example that if I want to purchase something from top to bottom, I will rather go into a mall and purchase everything. It is more easier for me rather than if I have one day and want to travel, one shop for the shoe and one shop for the jeans and shirts, then I will require more time and I will be exhausted. So for me as a consumer, I will choose Microsoft over any other technology. ठीक है, ये तो हुआ, बट मैंने पूछा था कि व्हाट डिफरेंशिएट्स इंट्यून फ्रॉम अदर, नॉट व्हाट डिफरेंशिएट्स माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम अदर. Bundled license with the several services integrated in one. There are two things that differentiated Intune from others. Every other MDM solution which originated along with Intune, they all started as an on-premises solution. एयरवॉच का इम्प्लीमेंटेशन भी ऑन प्रेमिसेस था, उसके बाद में वो वर्कस्पेस वन तब बना जब उसका क्लाउड आइटरेशन आया. बट इंट्यून का कोई ऑन प्रेमिसेस वर्जन ही नहीं था. इंट्यून डेब्यूटेड लाइक इट, उसने डेब्यू किया एज अ क्लाउड नेटिव इंडियन सॉल्यूशन. सो इट वाज ऑन द क्लाउड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है. एंड द सेकंड डिफरेंशिएशन इज जो आज तक किसी भी दूसरे MDM, UEM या EMM प्रोडक्ट के पास नहीं है, एंड दैट इज इट्स मैम कैपेबिलिटीज. क्योंकि ये प्रोप्राइटरी है, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता. MDM इज नॉट प्रोप्राइटरी क्योंकि MDM इज बेस्ड ऑन अ प्रोटोकॉल, बट MAM इज प्रोप्राइटरी. ये इंट्यून के पास ही सिर्फ है, एंड यही इंट्यून को कॉम्पिटिटिव एज देता है. और एक बार बोलोगे जो इस बात को एमएम का. मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, टिपिकली अगर मैं बोलूँ तो ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी. App protection policy is a proprietary of Microsoft and only Intune has that, where Intune can protect application on a device that is not managed by Microsoft.
कोई भी दूसरा एमडीएम यूएम ईएमएम प्रोडक्ट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है. So my device at this moment can be managed with Workspace ONE, but Intune will still be able to protect the apps on this device using app protection policies. ये फीचर किसी भी और के पास नहीं है. So this made Microsoft Intune the breakthrough product from Microsoft in terms of the businesses generate. Obviously हमको पता है कि लाइसेंस का कॉस्ट कितना है. तो if a company जो 1 लाख डिवाइसेस मैनेज कर रहा है, you can understand the amount of money that that company is paying to Microsoft just for the licenses. A ridiculous amount of money. So MDM capabilities of Microsoft Intune, it enables the organization to manage devices throughout the life cycle from uh, device enrollment, provisioning to management and protection to deploying apps to the retirement of the devices when an employee leaves the company. Uh, तो ये सब कुछ वो करता है. These are the MDM capabilities of Intune. And then we have the MAM capabilities. So where Intune can enforce corporate data access requirements, prevent data leakage on the device, enforce encryption on the app data, and it can do a app level selective wipe. Uh, that is what the MM capabilities of Microsoft Intune are. And Intune doesn't care if the device is owned by the organization or the device is personally owned. So I'm just talking about scenarios like if it's a corporate device or it's a BYOD device, Intune can support all the scenarios. Intune can even support the scenario where the device is managed by a third party MDM. uh, as I said, like Intune app protection can still go and protect applications on the device. This is ये सिनेरियो कब काम में आता है मुझे बता दो. कोई एक एग्जांपल दो मुझे. हेलो 1 2 3. हेलो 1 2 3. For such Joy, for without enrollment devices that we can manage the apps in a containerized way, or you can just manage नहीं, the apps एक अच्छा एग्जांपल. storage for OneDrive or local storage. If you want to नहीं copy the सिनेरियो का एग्जांपल. ये सिनेरियो कब काम में आता है, कौन से सिनेरियो है. ओके, तो मैं ही एग्जांपल देता हूँ. मैं आज एविडेंट का एम्प्लॉय हूँ, राइट. नहीं ठीक है, एविडेंट छोड़ दो, एविडेंट बाद में. कंसिडर कि आज मैं भी अभी भी एटॉस में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी एटॉस का एम्प्लॉय हूँ एंड मैं डिजिटल वर्क प्लेस में ही काम कर रहा हूँ. तो माई डिवाइस इज एनरोल्ड टू एटॉस. आज मैं एक क्लाइंट के लोकेशन पे ऑन साइट गया और एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. सो आई हैव joymallo.basura@atos.net and I also have joymallo.basura@xyz.com जो कि क्लाइंट है. और वो क्लाइंट के वो बोल रहा है कि दे डज नॉट नीड मी टू एनरोल द डिवाइस बट
मैं उसका डेटा भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट दे विल प्रोटेक्ट इट. तो इन सच केस में अगर मैं आउटलुक में वो दूसरा अकाउंट भी कॉन्फ़िगर करूँ, and if they have app protection policy, they can still protect that account, right? Yes. तो यही सिनेरियो आता है जब थर्ड पार्टी मैनेज का बात आता है. तो all such scenarios is possible with Intune, and like इससे ज़्यादा और भी Intune सपोर्ट करता है, लाइक तुम्हारा वन यूज़र अनलिमिटेड डिवाइस और वन डिवाइस अनलिमिटेड यूज़र Intune कैन सपोर्ट. अनलिमिटेड डिवाइस तो नहीं बोल सकते हैं. One license can enroll maximum 15 devices only. So one user 15 devices or one device unlimited user like a shared device. Intune can support, and that is all for the capabilities of Intune. So यही Intune का है, but then Microsoft also SCCM भी बेचता है, and that is the reason why we got the Microsoft Endpoint Manager rebranding, only for one particular feature, that is co-management, जहाँ पे जो Windows device already SCCM से traditionally manage हो रहा है, those devices can also be co-managed to bring them into the modern world. But otherwise, SCCM and Intune are competing products within Microsoft itself. So actually बोलना नहीं चाहिए, बट SCCM को बंद करने के लिए Intune को लाया गया था, बट देन मतलब अगर बिजनेस मिल रहा है तो मिल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट दोनों को ही चला रहा है. दैट इज वाई. सो विद इन माइक्रोसॉफ्ट का जो स्पेस है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हाउ डिड MDM इवॉल्व. इसमें अभी सौरभ तुम बोलो, तुम आई मैप और पॉप से स्टार्ट किए थे उस टाइम पे, अभी तुम बताओ ये एवोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कैसे हुआ. I used it when BlackBerry 10 was released in 2011. हाँ. But with Intune, there's because Microsoft Exchange always uses the ES protocol. So पहले तो कैश हाँ, सर्वर का ये एक्सचेंज एक्टिव सिंक. yes. तो अगर कॉर्पोरेट हम लोग जाते थे कॉर्पोरेट एक्सेस के लिए, तो इंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए तो दैट इज फॉर ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द EAS. सो वो लोग IMAP भी इनेबल कर सकते हैं, बट EAS was the standard bit protocol. तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज एक्टिव सिंक इज द फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून. Yes. ये सही भी है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट अगर MDM प्रोडक्ट कोई देखा जाए जिसमें बेसिक MDM कैपेबिलिटीज था, Yes. दैट वाज एक्चुअली एक्सचेंज एक्टिव सिंक. Through Exchange Active Sync, you could enforce device encryption, you could enforce password restriction, and you could also remotely wipe a device. ये Exchange के पोर्टल से होता था. But then this Exchange Active Sync, the MDM capabilities from Exchange Active Sync evolved into another product, and that was Office 365. Office 365 के license में भी there is a version of MDM enabled
जिसको हम O365 MDM बोलते हैं। और इसमें एक्सचेंज एक्टिव सिंक से थोड़ा ज़्यादा फीचर्स दिया गया था। लाइक इसमें क्लाउड बैकअप ब्लॉक कर सकते थे, स्क्रीन कैप्चर प्रिवेंट कर सकते थे, ऐप स्टोर एक्सेस प्रिवेंट कर सकते थे, और इट ऑल्सो हेल्प टू मैनेज द ईमेल प्रोफाइल ऑन द डिवाइस। बट स्टिल ये फुल्ली फंक्शनल नहीं था। एंड इस सब के बाद आया तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, एंड इट वाज द फुल प्रोडक्ट जिसमें फुल MDM एंड MAM कैपेबिलिटीज दिया गया था। तो दिस इज हाउ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट इवॉल्व्ड विद इन माइक्रोसॉफ्ट। तो क्विक डिस्क्रिप्शन जर्नी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून ऐसा था। 2011 में, जैसे मैंने बोला, ये विंडोज इंट्यून के नाम पे डेब्यू किया था। 2013 पे वो पीसी मैनेजमेंट एजेंट डाला गया था इसमें। 2014 में इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून रीनेम किया गया था एंड इट वाज कमर्शियली लॉन्च्ड। 2015 में मैक ओएस का सपोर्ट ऐड किया गया था। 2017 में ये एज्योर पे मूव हुआ था, और सिल्वर लाइट पोर्टल 2018 में डेप्रिकेट हुआ था। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया था, को मैनेजमेंट एंड वो सब। अच्छा, उससे पहले 2018 में तुम्हारा हाइब्रिड भी था SCCM के साथ, जो भी डेप्रिकेट हो चुका था। एंड 2020 में टेनेंट अटैच एंड वो सब आया था। तो इसके बाद तो और कुछ तो अभी तक फिलहाल नहीं आया। हाँ, इसके बाद 8 आएगा, जब वो MMPC और वो सब कुछ आएगा, ऐड होगा तब। बट अभी तक इतना ही। तो अगर हम देखें कि वाई दिस प्रोडक्ट इज सो सक्सेसफुल, तो 2014 के कमर्शियल लॉन्च होने के बाद अगर हम गार्टनर के रिपोर्ट देखें, तो 2014, 2015, 2016 तो छोड़ दो, प्रोडक्ट जस्ट मार्केट में आया था, न्यू था उस टाइम पे, तो कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन 2017 से लेके 2018, 2019, 2020, 2021 माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लीड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्यून। 2022 में 2022 में भी ऑब्वियसली इंट्यून ही लीडर था, बट 2022 में एक्चुअली इंट्यून ने इतना ज्यादा गैप में लीड किया था कि 2023 में गार्टनर को अपने पैरामीटर्स चेंज करना पड़ा इवैल्यूएशन का। तो प्रोडक्ट विच इज सो सक्सेसफुल, मतलब बिना ऐसे ऐसे ही तो किसी बात का तो ये सक्सेसफुल हो है नहीं ना। एंड दिस इज वाई इसका क्रेज भी मार्केट में ज़्यादा है, और इसीलिए CV में सिर्फ इंट्यून लिखने से ही लोग आजकल कैसे कैसे सैलरीज मांगते हैं, वो सौरभ को भी पता है। बट उस बात में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्विकली एक बार लाइसेंसिंग देख लेते हैं। लाइसेंसिंग फिर भी तुम लोग को तो पता ही है। सो एज आई सेड, एंटरप्राइज मोबिलिटी सूट के अंदर उसको मिलता था इंट्यून। उसमें एश्योर एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P1 मिलता था, और एश्योर राइट्स मैनेजमेंट सर्विस मिलता था। बाद में इसके साथ, जैसे मैंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ऐप सिक्योरिटी और एडवांस थ्रेट एनालिटिक्स ऐड किया गया था, और पूरा बंडल को रीनेम किया गया था एज अ माइक्रोसॉफ्ट मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी। इसके साथ बाद में ऑफिस 365 और विंडोज को ऐड किया गया था, और बना था माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ऐसे करके माइक्रोसॉफ्ट भी अपने अंदर लाइसेंसिंग को इवॉल्व किया है। तो यू नाउ गेट इंट्यून एज पार्ट ऑफ M365 लाइसेंस। M365 में F3
E3, E5 ये 3 लाइसेंस आता है। F3 इज फ्रंट लाइन, उसमें आपको कोई डेस्कटॉप वाला एप्लीकेशन वर्जन नहीं मिलता, वो एक्सेल आउटलुक वो सब का, यू गेट ओनली क्लाउड ओनली वर्जन जो आप वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज द F3 licensing. Then E3 and E5. E3 license obviously contains the मतलब जो जो प्रोडक्ट्स का वो प्रीमियम P1 एंड प्रीमियम P2 लाइसेंसिंग है, वो सारे प्रोडक्ट्स का P1 लाइसेंस E3 में आता है एंड P2 लाइसेंस E5 में आता है। So that is M365. Intune is also still available as a EMS license के अंदर भी आपको मिलता है, और नहीं तो Intune स्टैंडअलोन लाइसेंस भी आपको मिलता है। और Intune का और एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, उधर पे मैंने दो बोला था, एक था आपका वो मैम कैपेबिलिटीज और एक था क्लाउड नेटिव फ्रॉम डेब्यू। Intune का एक तीसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो फैक्टर लाइसेंसिंग में है। वो कौन बोलेगा मुझे? टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, कोई है, सुन पा रहे हैं मुझे? Joy, bundle license or device or user license? अच्छा, Actually, Microsoft never use a device license. User licenses are there. So yes, as Rajit said, the bundle license capability that it evolves. ठीक है। नहीं, Intune का डिवाइस लाइसेंस तो है, उस पे Two भी out मैं of आऊंगा। 10 जो licensing होती है, मतलब I don't know, it depends on the agreement कि out of it 2 licenses can be used as a kiosk mode or a device mode. हाँ, बट इसका कोई एक्चुअली हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, उस पे मैं आऊंगा। बट वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स फ्रॉम कंपटीशन यही बोलते थे। अभी तो जो है सब कोई मतलब यूजर लाइसेंस करता था, बट एट दैट टाइम व्हेन Intune केम इनटू मार्केट, इसका कॉम्पिटिशन्स जो था, मतलब कॉम्पिटिटर्स जो थे, सबका डिवाइस बेस्ड लाइसेंस यूज होता था। तो एक यूजर का अगर दो डिवाइस है तो उस यूजर को दो लाइसेंस लगता था कंपटीशन में। एयरवॉच का बात कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, यूजर बेस्ड लाइसेंसिंग दिया, और एक लाइसेंस कैन अकोमोडेट अप टू 15 डिवाइसेस। तो कॉस्ट सेविंग हुआ कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन का? Yes. इसीलिए बहुत से, जब माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जब आया, बहुत सारे माइग्रेशंस चला एयरवॉच टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइसेंसिंग। तो जैसे मैंने बोला, स्टैंड अलोन तो मिलता ही है, एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी भी मिलता है, और एक डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग भी मिलता है ना। डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग का ये है चक्कर, if you have purchased user based licensing for Intune, you can also enroll userless devices into management based on the trust. अभी ये ट्रस्ट कैसे चलता है? समझ लो मेरे पास 100 लाइसेंस है इंट्यून का, मतलब यूजर बेस्ड लाइसेंस है। मैं 100 यूजरलेस डिवाइस भी मैं कर सकता हूँ एनरोल, 150 भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं रहा है, 200 भी कर सकता हूँ, वो भी नहीं रोकेगा। बट जब ऑडिट होगा माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारे पास आएगा और एक्स्ट्रा डिवाइसेस का तब पैसा जाएगा। रोक तुम्हें कोई नहीं रहा है। बट समझ लो अगर मैं एक यूजर लाइसेंस खरीदा, और उस यूजर लाइसेंस, एक लाइसेंस के बदले में अगर मैं 1000 डिवाइस एनरोल किया यूजर लेस, तो इज इट बेस्ड ऑन ट्रस्ट? इसमें क्या ट्रस्ट कुछ बात है? इसमें कोई ट्रस्ट का बात नहीं है, ये भरोसा तोड़ना होता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का जो लाइसेंसिंग है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि
तुमने अगर मेरे से 100 लाइसेंस खरीदा है तो तुम जाओ फ्रीली, तुम 100 यूजरलेस डिवाइस को भी एनरोल करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको क्रॉस मत करो। और अभी अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट ऐसा ही है कि तुमको यूजर डिवाइस चाहिए ही नहीं, तुमको सिर्फ अपने टीनेट में कियोस्क और शेयर डिवाइस ही चाहिए, मतलब यूजरलेस, तब तो कोई ट्रस्ट नहीं बनता। तो उस केस में यू गो एंड परचेज द डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग। नहीं तो एक नॉर्मल, जैसे हम लोग का टेनेंट है एटॉस का, मैनेजिंग अराउंड 1,10,000 डिवाइसेस, हम लोग का नियरली अराउंड 1.5 लाख लाइसेंसेस है। हम लोग के पास कोई डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग नहीं है, बट हम लोग के पास दबा के शेयर डिवाइसेस है, टीम्स मीटिंग रूम डिवाइसेस है, सब कुछ है। तो कोई आके कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज अगर कोई आके बोलेगा, हम लोग ने वो जो 1.5 लाख लाइसेंस हम लोग ने लिए हैं, उस लाइसेंस का डिवाइस लिमिट हम लोग ने क्रॉस नहीं किया है। इधर पे मैथ, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स समझो। एक लाइसेंस कितना डिवाइस एनरोल कर सकता है? 15। तो अगर मैंने एक लाइसेंस खरीदा, सिर्फ एक लाइसेंस खरीदा, राइट। तो मेरा टेनेंट का कैपेसिटी क्या है? 15 डिवाइसेस। 15 डिवाइसेस, राइट। राइट। अगर मैं उसमें से, मतलब मैंने वो लाइसेंस एक यूजर को असाइन किया और उस यूजर ने 5 डिवाइस एनरोल किए, तो मेरे पास अभी बैलेंस कितना बचा है? 10। तो वो 10 डिवाइस मैं यूज कर सकता हूँ ना यूजरलेस पे? शेयर्ड पे। राइट। माइक्रोसॉफ्ट आके मुझे कुछ बोलेगा? नहीं। अच्छा, अभी समझ लो कि मैंने यूजर पे लाइसेंस दिया, यूजर ने 5 डिवाइस एनरोल किया, मेरे पास बाकी बचे बैलेंस कितने हैं? 10। हम्म। लेकिन मैंने 20 डिवाइस एनरोल किया शेयर करके, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट आके मुझे बोलेगा? यस। ब्रीच ऑफ एक्स्ट्रा ट्रस्ट। वो 10 बोलेगा डिवाइस। बाकी 10 का जो, बाकी जो एक्स्ट्रा तुमने जो लिमिट क्रॉस किया 10 डिवाइस का, उसका इधर तुम एक यूजर लाइसेंस खरीदो, नहीं तो तुम 10 डिवाइस बेस्ड लाइसेंस खरीदो। ओके, वो चॉइस रहता है, लाइक एक यूजर बेस्ड और 10 हाँ, वो डिवाइस बेस्ड। अभी अभी तुरंत आके सिनेरियो माइक्रोसॉफ्ट तो डिपेंड। बोलेगा नहीं, हाँ, तुरंत आके बोलेगा नहीं, ये तो ऑडिट पे जब मतलब पकड़ में आएगा तब आएगा माइक्रोसॉफ्ट, और उसमें तो माइक्रोसॉफ्ट तुमको पेनल्टी भी लगाएगा। अच्छा। ओके। तो यही है कि ट्रस्ट के ऊपर है, अपना डिवाइस कैलकुलेट करो और बिंदास चलो। अभी 15, एक लाइसेंस पे 15 डिवाइस एनरोल हो सकता है, बट उसका कोई रियल मीनिंग है नहीं। क्यों है नहीं? मतलब समझ लो मैं 15 डिवाइस एनरोल कर सकता हूँ, मैंने 15 का 15 ही एनरोल किया, क्या वो 15 का 15 डिवाइस मेरे काम का है? नहीं, मतलब एक साथ तो 15 डिवाइस यूज नहीं होगा, करेक्ट, एक यूजर नहीं नहीं, एक का। से यूज नहीं होगा, कि समझ लो मेरे पास 15 हाथ है, मैं 15 डिवाइस को एक साथ यूज कर रहा हूँ, लेकिन होगा। क्या मैं टेक्निकली कर पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं नहीं? कर। उसका क्यों? लॉजिक बताओ। लॉजिक M365 जो कैपेबिलिटी देता है ऑफिस एप्स पे अप टू 5 डिवाइसेस का। हाँ, हम्म। तो मेरा ऑफिस एप्लीकेशंस अगर 5 डिवाइस पे ही चलेगा, तो मैं 15 डिवाइस एनरोल करके क्या करूंगा? क्योंकि जैसे मैं छठवां डिवाइस एनरोल करूंगा, 6 डिवाइस, मेरे प्रीवियस जो 5 ऑलरेडी एनरोल्ड है, ऑफिस 365 से अलर्ट आ जाएगा कि टू कंटिन्यू यूजिंग ऑफिस एप्लीकेशंस ऑन दिस डिवाइस, प्लीज डिलीट वन ऑफ द डिवाइसेस फ्रॉम योर हिस्ट्री।
तो तुम जब 6 डिवाइस 7 डिवाइस एक साथ में ऑफिस चला नहीं सकते हो, तो तुम 15 डिवाइस एनरोल करके क्या करोगे? एंड दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक हर कंपनी में। जो वो एनरोलमेंट रेस्ट्रिक्शन में डिवाइस लिमिट सेट किया जाता है, दैट इज इधर मतलब वो 5 के नीचे ही रखा जाता है, क्योंकि तुमको 5 से ज्यादा डिवाइस एनरोल करके देके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकली अगर मैं 5 भी लिमिट पे रखूं, तो मैं हर लाइसेंस पे मेरा 10 का कैपेसिटी बढ़ रहा है, मतलब बच रहा है। तो उस 10 का कैपेसिटी को पर लाइसेंस लेके ट्रस्ट बेसिस पे मैं बिंदास अपना यूजरलेस सिनेरियो को उसी टेनेंट पे रख सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट आके मुझे कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यही था आज का इंट्रोडक्टरी सेशन। इसमें इसके आगे तो और कुछ है नहीं। तो सारे इंट्रोडक्शन, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों आया, सारे बैकग्राउंड हिस्ट्रीज मैंने आज क्लियर किया। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग थोड़ा एश्योर एडी पे देखेंगे, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट विद डिवाइस मैनेजमेंट वी आल्सो नीड टू बी क्लियर ऑन द आइडेंटिटी एस्पेक्ट, बिकॉज आइडेंटिटी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। तो एश्योर एडी का कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। एंड एश्योर एडी बोले तो क्या, व्हाट इज द न्यू नेम? Enter ID. Enter एंटर ID. आईडी। तो मेरे स्लाइड्स में अगर एश्योर एडी भी लिखा रहेगा, तो उसको एंटर आईडी ही पढ़ना, क्योंकि मैं स्लाइड्स तो बार बार नहीं बनाऊंगा, मैंने एक ही बार बनाया है। Yep. अभी माइक्रोसॉफ्ट नाम चेंज करता रहे, वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग? वन क्वेश्चन जो है, जैसे आपने कहा था कि इफ सिंगल यूजर लाइसेंस कैन यूज अप टू 15, दैट इज मैक्सिमम, तो 5 तो हम ऑफिस की वजह से यूज कर पाते हैं बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन, उसके बाद हम जा नहीं सकते। 10 वी कैन यूज एज अ कियोस्क डिवाइसेस। लेकिन अगर पर डिवाइस लाइसेंस के लिए हम कर रहे हैं तो वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है यूजर लाइसेंस के साथ। ना, ओके। डिवाइस लाइसेंस आप जो परचेस करते हो, इसमें इसमें भी एक लोचा है। यूजर लाइसेंस इज एन असाइनेबल लाइसेंस, मतलब आप उसको एक यूजर अकाउंट पे एक्चुअली में जाके असाइन करते हो, तभी जाके यूजर को लाइसेंस मिलता है। डिवाइस लाइसेंस इज नॉन असाइनेबल। डिवाइस लाइसेंस आप जो परचेस करते हो, वो नंबर ऑफ लाइसेंसेस में आपको सिर्फ दिखेगा, लेकिन उसको जाके आप मतलब किसी डिवाइस पे क्लिक करोगे, उस पे वो ऑप्शन नहीं है कि असाइन अ लाइसेंस। तो उसमें भी वो भी ट्रस्ट, आप 10 डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग खरीद रहे हो, आप करो, मतलब 10 डिवाइस को एनरोल करो। बट तो बस आज तक मैंने किसी भी टेनेंट को, मतलब मैंने देखा नहीं कि डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग अलग से खरीदा है। बट है, लाइसेंस है, बट मैंने नहीं देखा है। एक ऐसी कंसर्न है, अगर समझ लो मेरा कंपनी का स्ट्रेंथ 100 यूजर्स है, ओके, अभी बट डेम अकाउंट इज having the giving the capability of 150 dem accounts can be supported in Intune, okay, हम्म तो अभी 150 into 1000 devices, so वो हम्म कैलकुलेशन कैसे रहेगा? हाँ, तो ये सारे कैलकुलेशन में देखा जाए, अगर तुम्हारे पास टोटल यूजर लाइसेंस जो है, उसका जो डिवाइस कैपेसिटी जो आ रहा है निकल के, और एक्चुअल एनरोल डिवाइस अभी जो तुम्हारे डिवाइस मतलब टेनेंट पे है, तो वो डिफरेंस पहले निकालना होगा कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द टेनेंट माइनस एक्चुअल एनरोल डिवाइसेस, जो काउंट बच के आ रहा है, वो काउंट इज क्या तुम्हारा वो डेम एनरोल डिवाइस को कवर कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है कवर, तो देन यू विल either नीड टू इंक्रीज योर यूजर बेस्ड लाइसेंसिंग, और नहीं तो
डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग खरीद लो, क्योंकि डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग तुम्हारा थोड़ा चीपर है देन यूजर बेस्ड लाइसेंसिंग। ओके, इसलिए वहां पर सिर्फ एमडीएम कैपेबिलिटी है। ओके। हाँ, क्योंकि शेयर डिवाइसेस है, कियोस्क डिवाइसेस है, उस पे तो तुम ऐप प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हो, तो उस पे तो लाइसेंस पे वो सब नहीं है ना। राइट, सिर्फ इंट्रोल और पॉलिसीज और प्रोफाइल भेजो बस। तो ये है, तो तुमको काउंट हमेशा ऐसे ही करना है कि मेरा टोटल लाइसेंस काउंट कितना है, तो टोटल लाइसेंस काउंट के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा टोटल टेनेंट कैपेसिटी निकलता है। अभी टोटल टेनेंट कैपेसिटी से तुम टोटल एनरोल डिवाइसेस को तुम माइनस करोगे, तो दैट इज योर बैलेंस। अब तुम देखोगे कि जो बैलेंस निकल रहा है वो बैलेंस तुम्हारा शेयर डिवाइस सिनेरियो को मीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो खरीद लो डिवाइस बेस्ड लाइसेंसिंग या फिर यूजर बेस्ड लाइसेंसिंग अगर पैसा है तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग इधर पे स्टॉप करता हूँ। Good for now from me. Me too. ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप।